सीधा क्यों ना सीधा. Good morning, students. Today we are going to study next topic of ray optics related to reflection of mirror, that is relation between focal length and radius of curvature. Okay. In this derivation we will use the basic knowledge of reflection. So let's see. This one is a diagram. You can see here y, p and y dash is a concave mirror. Okay, where p is pole of the mirror and c is center of curvature of the mirror. Okay, now you can see p dash c p is principal axis of this mirror. Okay, now you can see incident ray AB is reflected from the surface y p y dash, and after reflection it intersects some point on the principal axis, and according to the definition this point is known as focal length of the mirror. Okay, so let us write about the basic terminology related to this derivation. So you can write here y p y dash is concave mirror, then p is pole of the mirror, f is focus, c is center of curvature, and you can see here pf is equal to f is equal to focal length, and pc is equal to r is equal to radius of curvature. So we have already discussed about these things. So for this derivation, means to find out the relation between focal length and radius of curvature, we need these things. So note it down in your copy. I am going to raise these things and we will proceed to find out the relation. So pause your video and note it down. Now we need the normal for this case. So you can see that here this one is spherical and this one is the center of the sphere. So the dotted line which intersect at point C is normal for this case. So you can see here CV is normal for this reflection. It means for reflection from A to B and B to this line, you can write here suppose A dash. So for this reflection, that is AB to BA dash, the normal is CB. Okay. Then angle of incidence, that is I, and angle of reflection, that is R, shown in the figure. And according to law of reflection, these two angles must be equal to each other. Okay. So you can write here angle I must be equal to angle R according to law of reflection. Okay, so these two angles must be equal to each other. Now you can see in geometry, that is you can see here the line AB and this line CP are parallel to each other. Okay, and this line, that is BC, is here. So according to the geometry, this angle, that is angle ABC and angle BCP must be equal to each other. Okay, so you can see here this angle I should be equal to this angle I according to the geometry. Okay, so you can write the angle ABC and angle BCP must be equal to each other.
and if these two angles are equal, then you can see in the triangle BCP, in triangle BCP, angle BCP and angle CBF are also equal. You can see here this angle is I and this one is R, but according to law of reflection, I must be equal to R. It means these two angles are equal in triangle BCF. And if any triangle, if two angles are equal, then that triangle is known as, what is the name of that triangle? If two angles are equal in any triangle, you can note down in your copy. तो इसको नोट करिए, इसके बाद हम बताते हैं कि क्या होगा. यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये जो BCF है, इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, ये एंगल R और ये एंगल I. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये I और R इक्वल है और ये ज्योमेट्री से I और I हो जाएगा. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे. और जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये ट्रायंगल होगा जिसके दो साइड इक्वल होने चाहिए. इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स टू साइड मस्ट बी equal. It means CF must be equal to this part, that is FB. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस ज्योमेट्री से, यहाँ पे इस ज्योमेट्री से लिख सकते हैं साइड इन ट्रायंगल FCBCF, CF is equal to FB, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एजम्पशन, थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना होगा हमें. इफ पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट बी अगर पॉइंट पी के बहुत ही क्लोज हो जाए, उस केस में हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ बी इज वेरी क्लोज टू पी, वेरी क्लोज टू पी. तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, हम लोग लिख सकते हैं एफ बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी. इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो साइड है ये दिख रहे हैं, इसको अप्रोक्सीमेट इतना ही लिख सकते हैं. इफ बी इज वेरी क्लोज टू पी, सपोज यहाँ कहीं है बी, यहाँ पे आपको रे डायग्राम काफी बड़ा दिखाया जा रहा है, बट लाइट के केस में ये जो रेज है ये बहुत क्लोज भी हो सकती है, पॉइंट पी की बहुत ही पास होगी. तो उस केस में यहाँ पे ये जो लाइन इसकी बहुत ही क्लोज है, वो अप्रोक्सीमेट ये इक्वल ही होगा. तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एफ बी और एफ पी इक्वल हो जाएंगे. उस केस में अगर आप देखें कि पॉइंट एफ जो होगा वो पी सी का मीट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, पॉइंट एफ जो होगा वो पी और सी का मीट पॉइंट बन जाएगा. और उस केस में आप लिख सकते हैं, उस केस में आप लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2FP. अगर ये इक्वल हो गया, क्योंकि ये इक्वल हुआ तो ये इसके इक्वल ही है, तो यहाँ पे CP इज इक्वल टू 2FP लिख सकते हैं. और CP की वैल्यू देखिए कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2, और FP की वैल्यू देखिए कितनी है, F के इक्वल. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, F. तो ये हो गया आपका रिलेशन, R इज इक्वल टू 2F. तो यही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक्चुअल में इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है, FB को यहाँ पे FP के इक्वल ले लिया गया है. आप देखेंगे ये जो इस अप्रोक्सीमेशन से इस रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो ये डिस्टेंसेस अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होते हैं. ओके, तो ये रिलेशन आ गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. ठीक है, सो दिस रिलेशन इज प्रूव. देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिलेशन लेंसेज के लिए ट्रू नहीं है, ये रिलेशन सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए ही ट्रू है. ये रिलेशन कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर के लिए ट्रू है, लेकिन प्लेन मिरर और लेंसेज के लिए ये रिलेशन ट्रू नहीं है. ठीक है, to study sign convention. So our next topic is sign convention related to mirror. Okay, so let's see about the sign convention.
suppose this is a mirror system. You can see here, this is the pole, center of curvature, focus is somewhere between pole and center of curvature. This one is the mirror, that is ypy dash. Okay, so साइन कन्वेंशन इज टेकन टू सिमिलरिटी के लिए कि सारी कंडीशन पे हम लोग कोई कंफ्यूजन न रहे किसी कंडीशन में, उसके लिए साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पोल इज कंसीडर्ड एज द ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे पोल को ओरिजिन कंसीडर करते हैं। पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, तो यहाँ पे पोल को ओरिजिन कंसीडर करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं इसके लिए ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। तो सारी डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से मेजर किया जाता है। या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको पोल, क्योंकि हम लोग ओरिजिन पोल को ही बोल रहे हैं। तो ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है। जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, जैसे कि पोल से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मेजर करना है, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, जैसे फोकल लेंथ चाहिए, सपोज फोकस यहाँ पे, तो फोकल लेंथ के लिए आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सी भी एक पॉइंट है, कोई पॉइंट आप इधर चूज कर सकते हैं, एक पॉइंट पोल है। बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन में सारी डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करना है, ये कंपलसरी कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ये फोकल लेंथ होगा। और दूसरा डिस्टेंस यहाँ से अगर मेजर करें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, that is pole is considered as the origin and all the distances are measured from the pole। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में हम लोग डिस्टेंस जो है हमारे उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं all the distances measured opposite to the incident ray are taken as नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कोई भी डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में रखना कंपलसरी है। ठीक है, इसको कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लिया है इंसिडेंट रे के लिए, बट आप उससे पहले एक बात जानना जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो पोल के लेफ्ट होना चाहिए। मतलब आप बुक में जब भी देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको पोल से लेफ्ट साइड में ही दिखेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि कौन कौन से हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, कौन कौन से पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, ये सेकेंड पॉइंट है। और इससे पहले एक लाइन आप अपने जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए नोट कर लीजिए, वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। ओके, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जैसे आपके पास दो पोजीशंस हो सकती हैं, एक तो यहाँ रखेंगे, ये देखिए इस पोल से लेफ्ट साइड में, और ये यहाँ पे राइट साइड में। तो ये कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती है बुक में आपके, कभी भी मिरर के इस साइड में आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज यहाँ पे होगा। कभी कभी आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बन रही है और वो इमेज किसी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उस केस में यहाँ पे ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे कभी भी एक मिरर है तो उससे राइट साइड में कभी भी ऑब्जेक्ट आपको
नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये वाली केस वैलिड है, ये केस वैलिड नहीं है जो पोल से इस साइड में ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है कंडीशन। अब देखते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का मीनिंग क्या है। तो आप ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब यहाँ देखते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट इस डायरेक्शन में चलेगी ऐसे, फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से फोकस से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस केस में आप फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि सभी डिस्टेंस को हमें पोल से मेजर करना कंपलसरी है। तो जब पोल से आप मेजर करना शुरू करेंगे फोकस तक की डिस्टेंस, तो आपको पोल से इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइट चल रही है और आप मेजर करने के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोल से, इसलिए ये जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव आएगी। तो आप लिखेंगे जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात करेंगे हम। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेजर करना है आपको, मीन्स P टू C डिस्टेंस, उसके लिए भी आप इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं। ये है इंसिडेंट रे, तो अगर आप इसको ए भी लिख दें तो ये ए भी है इंसिडेंट रे, और आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है इन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। इट मीन्स कॉनकेव मिरर के लिए आप फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि सेकेंड पॉइंट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा था ऑल द डिस्टेंसेस टेकन इन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे इनको नेगेटिव लिया जाएगा। सारे फॉर्मूले डेरिवेशंस में और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय दोनों ही केसेस में इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम साइन कन्वेंशन पे प्रॉपर वर्क करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज गिवन होती है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, उनको साइन कन्वेंशन के साथ लिया जाता है, और जिसको फाइंड आउट करना होता है कभी भी उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखते हम, वो आंसर में वो साइन कन्वेंशन के साथ आता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आपको पता चल गया है सेकेंड पॉइंट क्या है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are taken as positive। तो यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट जो था वो था ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, जो अभी भी डिस्कस किया। और थर्ड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर हम इंसिडेंट की रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। लेकिन इस मिरर में आप ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसी डिस्टेंस आपको नहीं दिख रही होगी जो कि आप यहाँ पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारे केसेस, सारी जो चीजें हैं वो नेगेटिव ही आएंगी। सारी चीजों का मतलब यहाँ पे देखिए इमेज, अगर यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको ओ ए बोल देते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आप पी से मेजर करेंगे तो यहाँ से इधर नेगेटिव आएगा, जिसको हम लोग माइनस यू लिखते हैं, यू लिखेंगे यहाँ पे। अगर इमेज कहीं इधर कहीं फॉर्मेशन होगा इमेज का, ठीक है, तो इमेज जहाँ फॉर्म होगी वो भी पोल से इधर लेंगे तो वो भी माइनस भी आएगा। फोकल लेंथ माइनस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर है अगर, तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है,
किसी किसी केस में पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी केस है जिसमें कुछ एक क्वांटिटी इसमें से पॉजिटिव हो सकती है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कभी कभी मेजर करते हैं। तो उसके लिए अगर आप इस डायग्राम को इरेज कर दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में भी मेजर करते हैं। तो देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब वो इस टाइप का होगा, यहाँ पे ऐसे, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में रखना है तो यहाँ कहीं रखेंगे, इसको ए भी बोल देते हैं। यहाँ से लाइट रे ऐसे चलेगी, ठीक है, ये इसका पोल हुआ। अब ध्यान देने की बात ये है कि इस ये जो आपको दिख रहा है, सपोज ये वाई पी वाई डैश है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर का सेंटर होता है जिससे ये, या फिर बोल सकते हैं उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है जिससे ये मिरर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर, ये जो स्फीयर है ये कंप्लीट होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, अगर इमेजिनरी कंप्लीट करें तो इसका मतलब इसका सेंटर इसके लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में कहीं है, तो यहाँ कहीं होगा ये सेंटर। तो इस केस में अगर आप देखें तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में चल रही है। अब जब आप डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की मेजर करेंगे तो आप इसी डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे इसलिए इसको प्लस आर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है मिरर की कौन सी टाइप का मिरर है। यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ गया क्योंकि पोल से जब हम सेंटर की तरफ चल रहे हैं तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन शो करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नॉर्मल। तो देखिए इस केस में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो मान लेते हैं कि ये स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा इस डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे इस सरफेस जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर इंसिडेंट हो रही है, वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हो, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। आपको पता है किसी भी सर्कल में या फिर किसी भी स्फीयर में अगर कोई लाइन सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक जाती है तो वो उस सरकमफेरेंस पे नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, तो ये देखिए ऐसे चलेगा। अब अगर इस लाइन को आगे इंक्रीज करें ऐसे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही इसका फोकस होगा, यही फोकस की डिफिनेशन है। अगर कोई लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे या तो इंटरसेक्ट करे रियलिटी में या फिर वर्चुअली इंटरसेक्ट करे, वर्चुअली मीन्स रियलिटी में तो नहीं कर रही है बट उसको डॉटेड लाइन से अगर इंक्रीज करे तो वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसी को बोलते हैं इसका फोकस। तो यहाँ पे देखिए अब फोकस तक का डिस्टेंस जब फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो फिर से हम P to F चलेंगे, तो यहाँ पे ये F हो जाएगा, तो ये F भी पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो आप जो है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो हमारा फोकल लेंथ है वो दोनों कॉनकेव के लिए नेगेटिव है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है, all the distances measured in the direction of incident ray are taken as positive। अब यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस है वो पोल से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, इसलिए इस केस में सभी पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये है थर्ड साइन कन्वेंशन, ओके। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए। तो अगर फोर्थ देखें,
all the distances measured upward to प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो है, इसी को बोल सकते हैं एक्स एक्स डैश, सपोज कर दिया यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कुछ भी मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे ये ए बी की हाइट है तो इस हाइट को यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सेकेंड एंड नेक्स्ट वन मीन्स फिफ्थ पॉइंट, all the distances measured downward to principal axis are taken as नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कुछ भी मेजर करेंगे तो वो उसकी हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इतनी टोटल कंडीशंस हैं साइन कन्वेंशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन, जितने भी फॉर्मूला डेरिवेशन है मिरर से रिलेटेड। लेंसेज में भी देखेंगे मैक्सिमम कंडीशन सिमिलर हैं, कुछ कंडीशंस वहाँ पे चेंज होंगी साइन कन्वेंशन में, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रोसेसेस होंगे वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ मिरर में जो कुछ भी होता है वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे ये साइन कन्वेंशंस हैं। बिना इन साइन कन्वेंशंस के कोई भी क्वेश्चन और कोई भी डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आप सभी को याद होने चाहिए। अब इसको एक साथ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जो एक्सिस है उस पर देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें सिमिलर हैं, जो हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी से रिलेटेड है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन को अपने जो हमारा पहले से ही बेसिक नॉलेज है उसकी बेसिस पे। ये है वाई डैश वाई वाई डैश वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्स एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओरिजिन को इस केस में हमको पोल कंसीडर करना है, तो ये हो गया पोल, इसी को हम लोग पी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ऑलवेज यहाँ पे होना चाहिए कहीं लेफ्ट साइड में, और इससे जब भी लाइट रे चलेगी रिफ्लेक्शन के लिए वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में चलेगी। ये कंडीशन फिक्स है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इट मींस लाइट रे ऑलवेज चलेगी along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। लाइट रे ऑलवेज along पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलेगी। अब देखिए अगर आप पोल से इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। यही हमारे बेसिक जो बेसिकली हम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़ते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए, वो यही पढ़ते हैं कि अगर ओरिजिन से लेफ्ट में चला तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस मिरर के लिए ये है। अब आप मिरर को इसी एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ये हो गया आपका मिरर, और या इसको ये मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ पे इसका पोल हो गया, इसके इधर चले तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे वैसे भी पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो इधर हो गया पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो सेम वही केस है, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक्स डैश पी एक्स ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव और इससे डाउनवर्ड नेगेटिव। तो सेम कंडीशन है जैसा कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वही कंडीशन है। इसको अब आप समराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप सभी को साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है, ठीक है। इसको रिवाइज करिएगा और कंप्लीट करिएगा। सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है ये सारा साइन कन्वेंशन आपको क्लियर समझ में आ गया है।
thank you for joining this session.